Today is the Hindu, 22nd September. Let us begin with the news in the first page. Putin mobilizes more troops, says nuclear threat not a bluff. Again, Putin, after getting some kind of backfire in the Kharkiv region from the Ukraine, has pledged for more harsh reactions on Ukraine. Putin mobilizes more troops, says nuclear threat not. Even he threatened for nuclear war. He threatened that if anybody tries to challenge Russia, Russia have all the weapons which can be used. Right? So that means he is more aggressive now. Though he talked with Modi in SCO that it is not an era of war, but now he is escalating the war. Actually, he is intensifying the war because he needs decisive victory to ensure his security proposals, which he has given to the European Union. So Russian President Vladimir Putin on Wednesday called for 3 lakh reservists, 3 lakh reserve troops को उन्होंने बुला लिया यूक्रेन में, और अब तक उन्होंने 1.5 लाख ट्रूप के साथ फाइट करना एक स्मॉल स्केल इनफैक्ट एग्रेशन शो किया था यूक्रेन में. अब वो लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन कर रहे हैं अपने ट्रूप्स का, अपने वेपन्स का. If the territorial integrity of our country is threatened, we will use available means to protect our people. That is the nuclear thing. This is not a bluff. Russia has lots of weapons to respond, he said. Mr. Putin accused Washington, London, Brussels of pushing Kyiv to transfer military operation to our territory. That means they are accusing that it is not Ukraine which is fighting. Actually, it is UK, it is US, it is these Germany. They are in fact fighting with Russia. Ukraine has sporadically struck target inside Russia using weapons supplied by the West. Nuclear blackmail has also been used, Mr. Putin said, citing Ukraine's Zaporizhzhia nuclear power plant. Zaporizhzhia is almost under the control of Russia. Russia and Ukraine have accused each other of endangering the plant in the fighting. Even Ukraine have said we will blast that site. Even Russian forces are saying that they are saying that they will endanger this site. तो वहां पर बॉम्ब गिरा देंगे तो तबाही मच जाएगी. इवन उसकी तबाही रशियन बॉर्डर तक भी जाएगी और यूक्रेन भी तबाह होगा और उसमें बहुत सारे और देश भी तबाह हो सकते हैं, क्योंकि ये ज़पोरिज़्ज़िया न्यूक्लियर प्लांट ये बहुत बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है. Russia said on Wednesday a large caliber shell had damaged a technical water pipe at the plant, which is occupied by Russian troops. उन्होंने कहा कि अभी किसी ने इस पर हमला भी किया है, वहां के वाटर पाइप का कनेक्शन टूट गया है बिकॉज ऑफ दैट हमला. दैट इज यूक्रेन ने ही किया है. तो वो बता रहा है कि अगर आप लोग इस तरह से चैलेंज करोगे तो हमारे पास भी न्यूक्लियर ऑप्शन है. करेंगे. अच्छा, नेक्स्ट है बिहार फ्री ऑफ नक्सल प्रेजेंस से सीआरपीएफ चीफ. दोनों न्यूज को बिहार नक्सल फ्री हो चुका है वो, और ये न्यूक्लियर डेंजर के बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे. एक एडिटोरियल में, एक नॉन एडिटोरियल सेक्शन में आया हुआ है, उसको हम लोग वहां पे पढ़ेंगे. अच्छा, एक छोटा न्यूज है. A century later, Nizam sword set to return to India. ये आर्ट कल्चर और हिस्ट्री से रिलेटेड है. 14th century ceremonial sword that was sold in Hyderabad to a British general. ऐसा माना जा रहा है कि कहा जा रहा था कि ये निजाम के स्वॉर्ड को चुरा लिया. ये अजीब सी स्वॉर्ड है, ये इस तरह की स्वॉर्ड नहीं देखी जाती है. 14th century serpent shaped sword है ये, ठीक है, इस तरह के आकार की है और इसमें ग्रिल वो है दोनों तरफ से. तो इंडिया में अब तक बिलीव था कि इसको चुराया गया है, लेकिन अभी ब्रिटिश इनफैक्ट ग्लासगो में ये बात बताई जा रही है कि ये चुराया नहीं गया था, इसको बेचा गया था. इनफैक्ट महाराजा सर किशन प्रसाद बहादुर यमीन उस सल्तनत ने इसको बेचा था. The 14th century ceremonial sword was sold in Hyderabad in to a British general of the 20th century is set to return to India. The sword is among the 7 other objects repatriated by the Glasgow Life, which manages Glasgow Museum. ये म्यूजियम में था, तो 7 इस तरह की और चीजें भी देना. इसमें सबसे फेमस चीज ये थी. Jonathan Reilly, communication officer of Glasgow Life, said the talwar, that sword, was purchased in 1905
by General Sir Archibald Hunter, Commander in Chief, Bombay Command के Commander in Chief थे, उन्होंने इसको खरीदा था from Maharaja Sir Kishan Prasad Bahadur Yamin Al Sultanate, the Prime Minister of Hyderabad. The talwar was donated by Sir Hunter's nephew, Mr. Archibald Hunter Service, to Glasgow Life Museum in 78. उन्होंने म्यूजियम को दे दिया था इस तलवार। The sword, shaped like a snake, has serrated edges and a Damascene pattern with gold etchings of an elephant and tiger. Elephant and tiger उसको बना हुआ है, gold etching है और दोनों तरफ से serrated edges हैं, मतलब कांटेदार edges हैं। तो ये एक ceremonial sword हुआ करती थी उस समय। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज पर। Let's talk about the ISRO. ISRO successfully test fired hybrid propulsion system. ये hybrid propulsion system क्या है? Hybrid propulsion system का मतलब होता है कि पहले हम लोग क्या करते थे, लॉक्स यूज करते थे, लिक्विड ऑक्सीजन यूज करते थे। अब उसकी जगह पर एक नया टाइप का फ्यूल लाया गया है जो कि ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा बढ़िया ऑक्सीडाइजर का काम करता है ये। करेक्ट? तो ISRO said that it successfully demonstrated a hybrid propulsion system that used a solid fuel and a liquid oxidizer. इसमें solid fuel होगा और liquid oxidizer होगा। The hybrid system is more efficient and it is greener, means less emissionless होगा and safer to handle and paves the way for new propulsion technologies for future missions like the Vikram Sarabhai Space Center said, which tested it with support from the liquid propulsion system centers said. In the ground-based test, the flight equivalent 30 kN hybrid motor used HTPB-based, HTPB मतलब होता है hydroxyl terminated polybutadiene, hydroxyl terminated polybutadiene, aluminized solid fuel and liquid oxygen as oxidizer. The test was performed for 15 seconds on 300 mm sounding rocket motor. Conventional STPB fuel हुआ करता था, that was based on solid propellant motors used in rocket, used ammonia percolate as oxidizer. उसमें क्या होता था, ammonia percolate oxidizer की तरह यूज करते थे। यहाँ पर हम लोग लॉक्स के साथ यूज कर रहे हैं, लिक्विड ऑक्सीजन के साथ यूज कर रहे हैं। While both STPB and LOX are green, the cyberogenic LOX is safer to handle. ये हाइब्रिड फ्यूल ज्यादा एफिशिएंट होगा, ज्यादा ग्रीनर होगा और ज्यादा सेफ होगा, इसलिए इसरो ने इसको अडॉप्ट किया है। ये नाम 2-3 है, इसमें याद रखिएगा, STPB, इनफैक्ट अमोनिया परकोलेट और लिक्विड ऑक्सीजन। ठीक है, एडिटोरियल में आते हैं। यहाँ पर फिर से उस इनफैक्ट न्यूक्लियर वाले न्यूज को फिर से एडिटोरियल में दिया गया है। Putin should see setbacks as evidence of irrationality of war. अभी क्या है, रशियन प्रेसिडेंट ने ये देखा कि एक पार्शियल ट्रूप मोबिलाइजेशन मार्क्स एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द लिमिट ऑफ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, यानी जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन में चला रहा था उसकी लिमिटेशंस रीच कर गई हैं, मतलब वो अब फेल होता नजर आ रहा है इन यूक्रेन। तो in Ukraine and a readiness to escalate the conflict. अब ये conflict को और escalate करने की कोशिश करेंगे। His original plan was to meet his military objective through a limited war. ये limited war लड़ने की कोशिश कर रहे थे। 1,50,000 सोल्जर्स को उसके लिए तैनात किया था। But this did not work as Ukraine forces backed military and economically by US and Europe. यूरोप ने उनको बहुत हेल्प कर दी है, बैकिंग कर दी है। That slowed down the enemy's advances and made the invasion costly for Russia. रशिया के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया, but Russia suffered its first major setback or defeat earlier this month in Kharkiv. Kharkiv or Oblast था, Kharkiv के Oblast region में in the northeastern, where its troops had to retreat in the face of lightning Ukrainian attack. अब आप इसको ओब्लास्ट वाला रीजन अगर देखना चाहते हैं तो फर्स्ट पेज के मैप में दिया हुआ है, इसको हम आपको दिखाते हैं। You can see here, ये जो मैप है, through this map you can understand this. अच्छा, यहाँ पे जो ये ग्रीन पार्ट है, दिस ग्रीन पार्ट, यहाँ पे ही सारा बवाल हो गया। ये खार्किव और ओब्लास्ट का पार्ट है, ये फिर से रिकैप्चर कर लिया यूक्रेनियन फोर्सेस ने। इनफैक्ट ये रशिया के कैप्चर, ये पहले से जो डोनेस्क और लुहांस्क जो रीजन था, जिसको डोनबास रीजन कहा जाता है, डोनबास रीजन इस रीजन को पहले से वो कैप्चर किया था।
ये क्रीमिया है जिसको 2014 से कैप्चर किया हुआ है। बाकी के पार्ट अभी नए कैप्चर किए गए पार्ट है। हमने कहा था जप्रोजिजा जो आपका वो है, ये भी धीरे धीरे उनके कंट्रोल में आ गया है, रशियन कंट्रोल में आ गया है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो अभी काउंटर ऑफेंसिव में जब ये हार गया, इनफैक्ट रशिया, तब रशिया बौखलाया हुआ है और रशिया बौखला कर ये सारे डिसीजंस ले रहा है कि उसको और बड़ा काउंटर ऑफेंसिव वो जारी करेगा और ज्यादा अटैक करेगा और फोर्सेस को इन्वॉल्व कर रहा है, इवन न्यूक्लियर की धमकी दे डाली उसने। ठीक है, तो इस तरीके से वी कैन सी दैट रशिया इज एस्केलेटिंग द वॉर। इनफैक्ट वो बार्गेनिंग पावर बढ़ाना चाह रहा है क्योंकि कोई बार्गेन कर नहीं रहा है जिस हिसाब से, क्योंकि अभी तक अगर रशियंस ज्यादा, यूक्रेनियंस ज्यादा हावी हो गए रशियन के ऊपर, तो इसके लिए बड़ी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। मुश्किलें इसलिए बढ़ जाएंगी क्योंकि जो बची कुछ इज्जत है इनफैक्ट रशिया की, वो अब हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो प्रो रशिया सेपरेटिस्ट इन लुहांस्क, डोनेट्स्क इन द ईस्टर्न एंड द खर्सन एंड Zaporozhye in the south are now planning to hold referendum। अब वो कह रहे हैं कि हम रेफरेंडम करेंगे इस एरिया में, जो हमने ऑरेंज वाला एरिया दिखाया उसमें वो रेफरेंडम करेंगे और कहेंगे कि ये जो पूरा ईस्टर्न रीजन है ये रशिया को ज्वाइन कर लेगा। तो उसको वो बफर की तरह क्रिएट करना चाहता है। एज अ रिजल्ट आर नोन इवन बिफोर द फर्स्ट बैलेट इज कास्ट, द डोर इज नाउ शटिंग ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ नेगोशिएशन। बात चल रही थी कि नेगोशिएशन हो सकता है, बातचीत हो सकती है, पर यूक्रेन भी नेगोशिएट करने के मूड में नहीं है। But almost 8 months later, his war has not only failed to meet its declared objective, which include Ukraine's demilitarization. वो यूक्रेन का demilitarization करने के लिए ही तो ये वॉर लड़ा था, but also has seen reinvigorated NATO. NATO तो और ज्यादा वहां एंटर कर गया। उसके बाद they have collectively put their weight behind the Ukraine now, and simultaneously the reaction of this was Finland and Sweden joined NATO. नाटो को छोटा करने की बात कर रहा था रशिया, नाटो को अपने बॉर्डर से पीछे करने की बात कर रहा था, उल्टा ही हो रहा है। तो इसका मतलब उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा नहीं हो रहा है। इफ मिस्टर पुतिन हु डायल्ड अप द न्यूक्लियर थ्रेट सेड his troops are facing the best of the western military machines, उन्होंने कहा कि ये लड़ाई हमारे लिए भी आसान नहीं है क्योंकि वेस्टर्न जो फोर्सेस हैं उन्होंने पूरी मॉडर्न मशीनरी को हमारे पीछे लगा दिया है। Till now, this Russian forces or Russian diplomats, Russian politicians, they in fact avoided calling this war as a military war. They call it a small operation, special operation. But this time they have recognized it is a war with the collective West. But there is no certainty that the partial mobilization would produce quick result। अब क्या पता कि तुम्हारे 1.5 लाख सोल्जर्स नहीं कर पाए तो और 3 लाख आकर इसको कर लेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए इन लोगों को इस डेंजरस फेज में वॉर को ले जाने से बचना चाहिए। अगला जो एडिटोरियल है दैट इज ऑन ट्रेड टैक्टिक्स। ट्रेड टैक्टिक्स के बारे में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिवैम्प करने की बात कर रही है गवर्नमेंट। 2015 से हमने एक फॉरेन पॉलिसी गाइडलाइंस दिए थे। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इसको 5-5 साल के लिए लागू करती है। 2015 में जो फॉरेन पॉलिसी इनफैक्ट आया था उसका टेन्योर 2020 में ओवर होता था। 2020 में जैसे ही ओवर होना था उसके 1 वीक पहले ही तो लॉकडाउन लग गया, तो उसको एक्सटेंड कर दिया गया था 1 साल से। फिर उसको जब 2020 से 21 एक्सटेंड हुआ, फिर 21 से 22 एक्सटेंड हुआ, तो 22 से इनफैक्ट फिर सितंबर तक एक्सटेंड करना इलॉजिकल था, पता नहीं क्यों इसको एक्सटेंड किया गया। बट अब वो डिले ही आ रहा है, लेकिन आ रहा है, फॉरेन पॉलिसी आ रहा है। दूसरी चीज ये प्रॉब्लम हो रही है कि ये जो फॉरेन पॉलिसी आई है, ये फॉरेन पॉलिसी तो आती है 31 मार्च के बाद से, यानी 1 अप्रैल से लागू होती है। ये मिड ईयर में इस तरह से सितंबर में, यानी सेकेंड लास्ट क्वार्टर में, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का क्वार्टर बचा है, 2 क्वार्टर बचा है, तो मिड ईयर में इसको सितंबर में लॉन्च किया जा रहा है। तो ये इनफैक्ट थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि बहुत सारे इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स ये हैं। इनफैक्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में जो लोग ऑलरेडी पहले से पुराने वाली पॉलिसी के हिसाब से डील या कॉन्ट्रैक्ट 6-6 महीने साल भर का कर चुके हैं, उनके लिए लॉस का सौदा हो सकता है, उनके लिए रिस्क हो सकता है। ये एक थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हो सकता है। द गवर्नमेंट विल रिलीज अ न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी in the coming years that could include measures to help push up goods and services exports as well as gain in the runway goodwill।
हमें इंपोर्ट बिल को कम करना है और गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट बढ़ाना है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नटसेल में यही करने वाली है। द करंट ट्रेड पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2015. However, the old policy extension beyond March 2021, especially the current 6 month stretch that drags it end date in September 30. September 30 का end date दे दिया गया है, ये समझ में नहीं आ रहा। Moreover, exports have been one of the few growth engines firing up the post-COVID recovery. So putting off a policy to bolster outbound ship was baffling. अब क्या होगा कि जैसे तुमने रिलीज कर दिया कि भाई हम नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लेके आ रहे हैं, तो जो शिप्स की जो लोड हो रही थी वो रुक जाएंगी, अब पेंडिंग रहेगा अगले 15-20 दिन तक। ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है एक्सपोर्टर्स के लिए। तो कोविड के बाद ये एक्सपोर्ट का जो इंजन था, इस इंजन से हमारा काफी ग्रोथ हुआ है, हमें हमारी इकोनॉमी को काफी संभलने का मौका मिला है। तो ऐसे इंजन को छेड़ना नहीं चाहिए था अभी मिडवे में। Enunciating India's strategy to cash in on the world seeking a become less dependent on China would also enable exporters to plan their investment ahead. तो सबने इसलिए भी रोक दिया कि आगे कुछ अच्छा आ सकता है, बिकॉज चाइना से जो इंपोर्ट करते थे लोग वो अब शिफ्ट कर रहे हैं, चाइना से नहीं करना चाह रहे हैं, तो उसका एडवांटेज इंडिया को उठाना है। इसके लिए इंडिया ने ये अनफॉर्चुनेट डिसीजन लिया होगा। लास्ट जनवरी WTO कंप्लायंट एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम वाज की। तो एक WTO कंप्लायंट मतलब जो WTO के लॉज के अंडर में आता है, ऐसा इंसेंटिव हमने दिया है इसको टू रिफंड डोमेस्टिक टैक्स टू एक्सपोर्टर्स। तो जो हम टैक्स ले रहे हैं ना, हम अपना घरेलू टैक्स ले रहे हैं, हम इंटरनल टैक्स ले रहे हैं, वो टैक्स उनको हम रिफंड कर देंगे। बट द रेट्स वर ओनली notified months later with a few sectors left out. Despite this completely avoidable uncertainty, goods export touched a record for 2022 billion in 21-22. हमारे यहाँ एक्सपोर्ट जो है इनफैक्ट 422 बिलियन पहुंच गया, ये हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट। इस साल गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है 450 बिलियन तक जाने का, जबकि एवरेज हमारा हर महीने का ऑन एन एवरेज 60 बिलियन का एक्सपोर्ट हो रहा है। ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन एंड रिसेशन फियर्स इन यूरोप एंड द यूएस डू नॉट ऑगर वेल। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ मचा हुआ है। गड़बड़ क्या मचा हुआ है? ये रिसेशन का फियर है यूरोप और यूएस में, वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये वॉर चल रहा है, अब न्यूक्लियर अटैक का खतरा इसमें आ गया, तो ऐसे में थोड़ा सा एक्सपोर्ट डाउन होगा और इनफैक्ट उस चीज को ध्यान में रख करके काम करना चाहिए। विथ रेवेन्यूज बाउंड, it is also time to reconsider its stance to exclude key growth sectors such as pharma, chemicals and iron and steel from duty remissions. अब क्या है कि अगर आपको ज्यादा कमाई करनी है तो आपने जो ड्यूटी एग्जेम्पशन दिया था फार्मा सेक्टर को, केमिकल सेक्टर को, आयरन स्टील सेक्टर को, वो ड्यूटीज आप फिर से री इम्पोज कर दीजिए, ठीक है, ताकि इससे आपको अच्छा रेवेन्यू आ सके। Having decided to keep away from the trade tracks of the Indo-Pacific इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, अभी हम लोगों ने IPEF नहीं ज्वाइन किया, हमने उसका जो ट्रेड ट्रैक था, जो तीसरा चौथा पिलर था ट्रेड ट्रैक, हम उसमें शामिल नहीं हुए हैं। Assertion that the government has no bandwidth left। और दूसरी चीज ये कि अभी हम लोगों ने पीयूष गोयल का कल स्टेटमेंट पढ़ा था, उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड हमसे चाह रहा है कि हम FTA करें, बहुत सारी और कंट्रीज हमसे चाह रही हैं FTA करें, पर हमारा FTA करने का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का बैंडविड्थ है वो समाप्त हो गया। बैंडविड्थ का मतलब होता है अब हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम इतना फ्री ट्रेड कर सकें, हमें अपने गुड्स को थोड़ा प्रमोट करना पड़ेगा, उनको उनके ऊपर थोड़ा टैक्स कलेक्शन करना पड़ेगा ताकि हम जिंदा रह सकें, हमारे इकोनॉमी अच्छी चल सके, राइट। अगर हम इसी तरह से सबको कम टैक्स पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते रहेंगे तो क्या होगा कि हमारे यहाँ जो ये थोड़ा सा प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी खेल रही है इंडिया। इवन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से जो FTA चल रहा है उसको भी हम स्लो डाउन करने चाह रहे हैं, क्योंकि GCC ना एक दो बार चाइना के फेवर में, खास करके चाइना के फेवर में बात कर दिया। वो जिंगजियांग प्रोविंस में जो उइगुर के मुस्लिम्स का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको लेकर के उसने बहुत स्ट्रिक्ट रुख नहीं अपनाया है, जिसकी वजह से क्या है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। बट श्योरली देयर आर बेटर वेज टू ड्राइव होम, देयर आर बेटर वेज टू ड्राइव होम। There are better ways to drive home India's rising cloud than by driving away potential partner countries. तो ऐसा है कि और भी तरीके हो सकते हैं। आप ये जो तरीका अपना रहे हो ट्रेड FTA ना करने का, ये इनफैक्ट बहुतों को नाराज करेगा। आपको पार्टनर्स चाहिए और ऐसे में आप उनको निराश कर रहे हो। इसके बाद ये एक आर्टिकल आता है
रिस्की न्यू स्टेटस को। ये जो चाइना, इस चाइना के लिए वो है, इंडो चाइना रिलेशंस पर है, जो हम लोग अभी डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं अपने बॉर्डर एरियाज में, उसको लेकर के। क्योंकि स्टेटस को एंटे यानी अप्रैल 2020 के पहले का जो पोजीशन था, हमारी शर्त थी कि हम उस पोजीशन को अटेन करना चाहते हैं, लेकिन बातचीत से जो निकल के आ रहा है एक नया स्टेटस को निकल के आ रहा है। स्टेटस को का मतलब होता है जस की तस स्थिति। तो हम जस की तस स्थिति करना चाहते थे जो अप्रैल 2020 के पहले था, बॉर्डर के जिस तरफ जितने डिस्टेंस दूर पर चाइना हुआ करता था, जितने डिस्टेंस दूर पर हम हुआ करते थे, वो डिस्कस करना चाह रहे थे। पर यहाँ सब कुछ चाइना के फेवर में एक्चुअली जा रहा है। जो चाइना का प्लान था वो धीरे धीरे सक्सेसफुल होता दिख रहा है। जो उसकी इस्लामी स्लाइसिंग की जो टेक्निक है, इस्लामी स्लाइसिंग का मतलब होता है 2 इंच आगे जाओ 1 इंच पीछे आओ तो 1 इंच का फायदा हो जाएगा। तो इंडिया एंड चाइना अपीयर टू बी मेंडिंग टेंशंस जिंजरली, मतलब जिंजरली मतलब अजीब से तरीके से। रिलेशंस हैव बीन आईसी सिंस चाइना लॉन्च मल्टीपल इनकर्शंस इन एलएसी। तो मल्टीपल जगह पर वो इस तरह से इनकर्शन कर दिया, एग्रेशन कर दिया, आगे बढ़ गया, एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आगे बढ़ गया। लेकिन बहुत दिन से बात चल रही थी डिसएंगेजमेंट की, डिसएंगेजमेंट हो नहीं रहा था। They completed disengagement in the area known as पेट्रोलिंग पॉइंट 15। PP15 जो है पेट्रोलिंग पॉइंट 15, जहां पर हम पेट्रोल करते थे, वहां पर भी डिसएंगेजमेंट हो रहा है और वहां पर दोनों देश अपने ट्रूप्स को पीछे खींच रहे हैं अपनी अपनी जगह पर। लेकिन इसमें लॉस इंडिया का हो रहा है कि इंडिया जहां तक पेट्रोलिंग करता था पहले, अब वो एरिया में भी वो नहीं जा सकता, वो बफर जोन क्रिएट हो रहा है। तो ये जो बफर जोन फॉर्मूला है, डीमिलिटराइज्ड बफर जोन का फॉर्मूला लेके आया है चाइना, ये डीमिलिटराइज्ड बफर जोन क्रिएट कर दे रहा है कि पहले यहाँ हमारे ये बॉर्डर था, हमारी फोर्सेस यहाँ तक वो करती थी, इनकी फोर्सेस यहाँ तक पेट्रोलिंग करती थी, ऐसा सिस्टम। अभी क्या किया जा रहा है कि इस पूरे जोन को डीमिलिटराइज किया जा रहा है कि आपकी फोर्सेस अब यहीं रहेंगी, हमारी फोर्सेस यहीं रहेंगी। दैट मींस इंडिया का कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉस हो रहा है इसमें। चाइना का कह रहे हैं, चाइना का भी लॉस हो रहा है, लेकिन चाइना अपने पोस्ट ही यहाँ क्रिएट कर ली थी जबरदस्ती। तो अपने पोस्ट वहां तक, उसके पोस्ट तक हम लोग पेट्रोलिंग करते थे पहले, उसके एकदम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल था। लेकिन अभी हमको पीछे आना पड़ रहा है और वो पीछे जा रहा है, तो उसका बहुत लॉस नहीं हो रहा, हमारा ज्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि वहां पर हमारे पास्चर लैंड्स थे। अभी आपने कल न्यूज पढ़ा था कि किस तरह से एक विलेज हेडमैन ने शिकायत की थी लद्दाख की कि हमारे जो देस्पांग प्लेन्स में चारागाह थे, पास्चर लैंड थे, PP15 के आसपास, PP17 के आसपास, वो हमारे हाथ से निकल जा रहा है, वहां हम जा नहीं सकते। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समरकंद में जो हुआ था उसमें भी हम लोग मीटिंग किए थे। Despite the latest round of disengagement, the LAC remains deeply unsettled. Observers have pointed out that the buffer zones produced by the crisis inhibit India's ability to patrol its own territory, and India and China have tacitly agreed to postpone settlement at 2 other confrontations. जैसे कि देस्पांग वाला अभी पेंडिंग छोड़ दिया गया है, तो 1-2 जगह पेंडिंग छोड़ दे करके आप पूरा कंप्लीट रिजोल्यूशन क्यों नहीं ला पा रहे हो? द बफर जोन्स एंड द देस्पांग स्टेटस, ये दोनों चीजें, ये चाइना के ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से चल रहा है, बिकॉज दे लिमिट इंडियाज मिलिट्री एक्टिविटीज नियर एलएसी, व्हिच एनालिस्ट जज हैड पार्टली मोटिवेटेड। तो उनका मेन पर्पस था टू लिमिट द इंडियाज मिलिट्री एक्टिविटीज नियर बॉर्डर, और वो उसमें काफी कुछ सक्सेसफुल हो जा रहे हैं। बफर जोन क्रिएट हो जा रहा है, उनके जो पेट्रोलिंग है वो लिमिटेड हो जा रही है। इवन देस्पांग वाला प्रॉब्लम जो था, देस्पांग भी वो कैप्चर किए हुए हैं और उसको छोड़ के जा भी नहीं रहे हैं। तो ये 2 प्रॉब्लमेटिक एरिया हमारे उसमें है। द रीइंफोर्समेंट, इसके बाद क्या है कि दोनों देशों ने क्या किया कि अपने बॉर्डर के उस एरिया को परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना दिया वहां पर, तो और वहां पर बहुत सारे फोर्सेस को डिप्लॉय कर रखा है। द रीइंफोर्समेंट दैट ईच साइड deployed since 2020 has not returned to action, मतलब वो फोर्स वापस नहीं गए। Even if future rounds of talks continue, disengagement and de-escalation and reduce those forces returning to the status quo ante is not possible. तो जो हमारा अप्रैल वाला पोजीशन था, वो अप्रैल 2020 का पोजीशन था, वो फिर से नहीं मिल सकता है। They have raised to build permanent military infrastructure, दोनों ने बिल्ड किया, लेकिन चाइना ने ज्यादा बिल्ड किया है, इसमें हमको काफी पीछे छोड़ दिया। उसने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, हम भी बना रहे हैं, लेकिन उतने वो नहीं बना पाए। चाइना ऑल स्टिल क्लेम्स अरुणाचल प्रदेश, चाइना क्या है, अरुणाचल प्रदेश को अभी भी क्लेम कर रहा है। एंड जस्ट एज इट हैज प्रेस्ड इट्स मरीन क्लेम्स वंस इट्स ग्रोइंग कैपेबिलिटीज परमिट, इट मिलिट्री बिल्डअप मे प्रोटेंड इंक्रीजिंग प्रेशर इन कमिंग ईयर्स इवन विद। अब वो क्या है कि वहां पर दोनों की मिलिट्री आमने सामने है, तो वहां पे प्रॉब्लम होगी। अब किसी को यहाँ पर बॉर्डर एरियाज में, लैंड बाउंड्री के एरिया में हमें एंगेज कर दिया,
ताकि हमारा जो रिसोर्स है ना वो मरीन तरफ ना जाए। और यह क्या हुआ, वो क्या किया कि वो मरीन रिसोर्सेज अपने बहुत कैपेबल बना लिया है। एक तरफ अरुणाचल प्रदेश को क्लेम कर रहा है और कभी भी लड़ाई हो सकती है, दूसरी तरफ मेरीटाइम क्लेम की वो तैयारी कर रहा है कि मेरीटाइम एरिया में इन अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल रीजन में वो अपना इन्फ्लुएंस धीरे धीरे करके बढ़ा चुका है। Even without a deliberate attack, the increasing capability and mobility on both sides of the border means that a crisis can more quickly escalate to large scale military. तो ये कभी भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है दोनों के बीच में एलएसी के ऊपर, क्योंकि इतना बड़ा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट वहां पर ठीक नहीं है, वो वार्म अप कर देगा कभी भी सिचुएशन को। For over 2 years, the land border has become the overwhelming priority of Indian military competition. यहाँ तक कि जो फोर्स हमारी पाकिस्तान की तरफ मुंह करके खड़ी थी, हमने उनको चाइना की तरफ लेके आया। ठीक है, it has deployed its newest artillery, fighter jets, drones to the China border. तो हमने अपने बहुत सारे रिसोर्सेज इधर डिप्लॉय कर दिए। At the same time, India has not significantly improved capabilities of posture in the Indian Ocean region. यही तो चाइना चाह रहा था कि तुम्हारा फोकस इधर रहे, इंडियन ओशन से आप हटे रहो। It granted a suite of impressive new capabilities. अभी क्या है कि cruise missile equipped fighters, US origin naval helicopters to a brand new indigenously built aircraft carrier Vikrant are inching towards fruition. लेकिन अभी हाल फिलहाल में इंडिया ने थोड़ा सा ध्यान दिया। पिछले 1.5-2 सालों में इंडिया ने बहुत सारे ऐसे डील्स की अमेरिका से, पोसेडियन को लेकर के, P-80 को लेकर के, या फाइटर जेट्स को लेकर के। ये सारे जो नए डील हुए, नए हमने मरीन कुछ कॉर्वेट्स और ये सारी चीजें निकाली, और उसके साथ साथ हम अभी एयरक्राफ्ट कैरियर निकाल रहे हैं, तो हमारा धीरे धीरे ओशन प्रेजेंस भी बढ़ रहा है। ये तो थैंकफुली हम लोगों ने टाइमली इसको हैंडल कर लिया। 70, but these programs were all initiated before the border crisis. लेकिन ये जो आज विक्रांत बन के आया, ये एक दिन में तो बन के आ गया है। ये तो ऐसा नहीं था कि हम 2020 में अचानक से शुरू किए, जब हमारे ऊपर गलवान अटैक हो गया उसके बाद हमने शुरू किया और ये बिल्ड कर लिया। नहीं, ये पहले के प्लान थे। जो कुछ भी हो रहा है, जो डील्स हो रही है, पहले के प्लान है। मतलब हम धीरे धीरे अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कैपेसिटीज को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, whether or not by design, this must delight Beijing. As India and China jostle for security and influence in Asia, the contest in the Indian Ocean will inevitably intensify. Their respective capabilities to protect military force across the ocean, to coerce or defend smaller regional states, and to establish an enduring strategic presence there will determine the Asia's balance of power. अब वहां पे कौन कितना साथी बटोर सकता है, कौन कितना अपना प्रेजेंस बटोर सकता है, इसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। With the border crisis, China seems to have successfully fixed India's gaze to the land border at the expense of the more consequential competition on that. तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज तो वो डाइवर्ट करवाया ही, क्योंकि इंडियन ओशन पे जो रिसोर्सेज पूरी तरह से, जो नेवी को हम स्ट्रॉन्ग करने जा रहे थे, हमें अपनी आर्मी को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ा, तो पैसा तो उतना ही था, मॉडर्नाइजेशन प्लान तो उतने का ही था, राइट। इसके साथ साथ we can see that this could be a golden opportunity for Indian planners to work towards long-term military modernization. अब धीरे धीरे हम लोग इसी बहाने हम अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं और इंडियन ओशन रीजन में अपना इन्फ्लुएंस और स्ट्रॉन्ग और बढ़ा सकते हैं। But a likelier and riskier outcome is that decision makers will prioritize other more potentially salient issues like quick wins in the campaign of Atmanirbhar in defense industry. तो हम आत्मनिर्भरता, डिफेंस इंडस्ट्री को और स्ट्रॉन्ग करना, अगर इस पर हम ज्यादा खर्चा करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है उस पर कम खर्च कर पाएंगे। लेकिन ये भी जरूरी है, अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो ये, तो इंडिया एक पैराडॉक्स में फंस गया है। कैसा पैराडॉक्स है? A cooling crisis on the border may teach India the wrong lesson, that the short-term expedient of greater readiness is enough to see off the Chinese threat. कि हम बीच बीच में जब भी हमारा मन करेगा हम स्ट्रांगली जाकर बॉर्डर पर खड़े हो जाएंगे और चाइना पीछे चला जाएगा। In fact, and especially for the strategic prize of India Ocean region, the challenge posed by China cannot be met without long-term growth in India's national capacity. तो अपनी नेशनल कैपेसिटी, अपनी इकोनॉमी को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा, तभी हम वहां पर चाइना को काउंटर कर सकते हैं इंडियन ओशन रीजन में। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म पॉलिसी तो ये होना चाहिए, और शॉर्ट टर्म पे हमें मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन भी करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में कुछ शॉर्ट न्यूज हैं, जैसे पुतिन कमेंट्स पुश डॉलर टू 2 डिकेड हाई। अब देखो, इन्होंने जब न्यूक्लियर की बात कर दी, डॉलर बहुत महंगा हो गया, यानी इंटरनेशनल मार्केट में हलचल मचना शुरू हो गया है।
The level at which the dollar index, which measures the greenback's value against other major currencies, jumped on Wednesday, its highest level since 2002. The dollar's new 2-decade high was prompted by Russian President Putin's decision to mobilize more troops further. The Ukraine grain export down by over 40% in 2023. यानी यूक्रेन से जो ग्रेन आता था वो इस सीजन बहुत कम हो चुका है, ऑलमोस्ट 40% से डाउन चल रहा है. शेयर्स ऑफ डेथ ड्यू टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, WHO एक बहुत बड़ी चीज हाईलाइट कर रहा है कि डेथ के कॉज में अगर डिजीजेस का नंबर देखा जाए तो जितने कम्युनिकेबल डिजीज है जैसे ये पेंडेमिक इन सबको मिला लिया जाए तो सबसे बड़ा कॉज डेथ का पूरे वर्ल्ड में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है, जैसे हार्ट डिजीजेस, कैंसर, डायबिटीज एक्सेट्रा. ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, हार्ट डिजीजेस हैं, ये ज्यादा किलर का काम कर रहे हैं. मतलब 100 में से 74 लोग तो सिर्फ इससे मर रहे हैं, केवल 26 लोग कम्युनिकेबल डिजीजेस से मर रहे हैं. ठीक है, तो दीज आर लाइफस्टाइल डिजीजेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से ये हो रहा है और ऑलमोस्ट 41 मिलियन पीपल डाई एवरी ईयर बिकॉज ऑफ दिस. तो ये कहीं कहीं हेल्थ इश्यूज पे आप इसको लिख सकते हो बहुत अच्छे से. जर्मनी नेशनलाइजेस द कंट्रीज बिगेस्ट गैस इंपोर्टर. इनका सबसे बड़ी गैस कंपनी थी, ऑयल एंड गैस कंपनी थी यूनिपर को इन्होंने नेशनलाइज कर दिया. अब देखो, इनफैक्ट आत्मनिर्भर वाला कंसेप्ट या नेशनलाइजेशन का कंसेप्ट सभी देश अपना रहे हैं. ये नेशनलाइज करना, जैसे हम लोगों ने मतलब पहले किया था, बैंकिंग सेक्टर को नेशनलाइज किया था, एयर इंडिया को नेशनलाइज किया था. ये नेशनलाइज करने वाला कंसेप्ट हमारा बहुत पुराना है. बट टुडे वी कैन से दैट कि यहाँ पर जो हम लोग अभी प्राइवेटाइज कर रहे हैं, धुआंधार प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ये हमारी प्रायोरिटीज थोड़ी सी क्वेश्चनेबल हो सकती है इन द सेंस कि अगर हम जर्मनी को इस तरह से यूनिपार को वो करते हुए देखें. लेकिन एक चीज ये भी सोचने की बात है कि जर्मनी इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसका बूस्ट कर चुका है. हमारे पास कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट कराने के लिए अलग से फंड नहीं है. तो फंड अवेलेबल करने के लिए लैंड मोनेटाइजेशन प्लान और इनफैक्ट डिसेंट्रलाइजेशन जिसको कहा जाए, प्राइवेटाइजेशन, इनफैक्ट हम लोग को डीनेशनलाइजेशन हमको करना पड़ रहा है, जैसे हमने अभी एयर इंडिया का डीनेशनलाइजेशन किया. तो 8 billion euros में the Germany will spend to assume 99% ownership of Uniper, the country's largest importer of Russian gas. Nationalizing Uniper is the second move in a week by the government to take control of the energy business. Energy business को पूरी तरह से ये कंट्रोल करना चाह रहा है and part of wider European response to the winter crisis, including France taking over the EDF. अभी फ्रांस ने इलेक्ट्रिक दी फ्रांस जो उनकी कंपनी थी उसको नेशनलाइज कर लिया. तो इस तरह से जर्मनी भी नेशनलाइज कर रहा है. और ये तो क्योंकि इनको एनर्जी सेक्टर पर कंट्रोल चाहिए, क्योंकि रशिया से जो एनर्जी वो लोग खरीद रहे थे अब उसको लेकर के बहुत खेल हो सकता था, इसलिए वो नेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. हाँ, क्लास में तो रूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग क्रिमिनल्स, ये जो अभी एक नया लॉ बना था, द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2020, जिसमें वो फिंगरप्रिंट वगैरह, जैसे आप ट्रायल फेज में ही उसमें आपके बायोमेट्रिक्स और फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे. पहले क्या था, ये लॉ बहुत पुराना है, इनफैक्ट 1920 का लॉ है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920. इस लॉ को हम लोग रिपील कर रहे हैं और नया लॉ रहे हैं, क्योंकि पहले जो टेक्नोलॉजीज थी आइडेंटिफिकेशन की अब बदल चुकी हैं. अब बायोमेट्रिक यूज होता है, अब बहुत सारी और चीजें यूज होती हैं इसमें. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन को मार्क करने के लिए पहले क्या था, फिंगरप्रिंट था, फुटप्रिंट था, हाइट था और ये सब था. अब वो सबसे आगे बात निकल चुकी है. पहले फोटोग्राफ और इन सब पर ही बहुत ज्यादा वो रिलाई करते थे. पहले क्या था कि मजिस्ट्रेट किसी भी नॉन कन्विक्टेड पर्सन के लिए ऑर्डर कर सकता है कि इनका फिंगर इंप्रेशन, फुटप्रिंट इंप्रेशन, फोटोग्राफ, ये सब लिया जा सकता है. ठीक है, कन्विक्टेड पर्सन का तो लिया ही जाता है, नॉन कन्विक्टेड पर्सन का भी लिया जा सकता है मजिस्ट्रेट के ऑर्डर. अब नया क्या है इसमें, न्यू काइंड ऑफ मेजरमेंट टेक्निक्स जो आ गए हैं उनको, उनके ऊपर हम ज्यादा रिलाई कर रहे हैं, क्योंकि एविडेंस में ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन ना क्रिएट करे, इसकी वजह से इसको नया टाइप ऑफ एविडेंस को, नया टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन को लाया गया है. द एक्ट एम्पावर्स अ मजिस्ट्रेट टू डायरेक्ट एनी पर्सन टू गिव मेजरमेंट व्हिच टिल नाउ वाज रिजर्व्ड फॉर कन्विक्ट्स. अभी तक सिर्फ ये कन्विक्ट के लिए था, एंड दोज इन्वॉल्व्ड इन हीनियस क्राइम. अब क्या है, अब किसी के लिए भी वो कर सकते हैं. इट ऑल्सो इनवॉल्व्स, इट ऑल्सो एनेबल्स द पुलिस
up to the rank of head constable to take measurement of any person who resist or refuse to give measurement. तो यहाँ पर अगर कोई नहीं दे रहा है अपना आइडेंटिफिकेशन तो उसके लिए पुलिस का भी इस्तेमाल कर सकती है कोर्ट. As per the rules, measurement include finger impressions, palm print, footprint, photographs, iris, retina, zinc scan, physical, biological samples, and their analysis, behavioral attributes, including signature, handwriting, or any other examination referred in Section 53 or Section 53A of the CRPC 1974. Though it has not been specified, in analysis of biological samples could also include DNA. DNA profiling के बारे में silent है ये बिल. तो ये बिल लागू किया गया था, ये बिल पास हो गया था, उसी बिल का रूल लागू किया जा रहा है क्योंकि कोई भी बिल तब एक्ट बन जाता है, एक्ट बनने के जब पास हो जाता है पार्लियामेंट में, और जब एक्ट बन जाता है उसके बाद वहां पे जो डिपार्टमेंट है वो कंसर्न डिपार्टमेंट और कमिटी उसके लिए रूल्स बनाती है, और जब तक रूल्स ना बन जाए तब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए रूल्स बनाया जाता है. ठीक है. व्हाट अबाउट कंसर्न्स दैट एक्ट विल बी मिसयूज्ड. अब क्या है कि ये तो डेटा का मामला हो गया, डेटा मतलब प्राइवेसी कहीं ना कहीं वायलेशन हो रहा है, तो देखा जाए इसको कैसे हैंडल कर रहे हैं ये बिल. द अपोजिशन मेंबर टर्म्ड इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अटैक्ड ऑन प्राइवेसी एज इट अलाउड द रिकॉर्ड ऑफ सैंपल्स ऑफ इवन पॉलिटिकल प्रिविलेजेस. यानी पॉलिटिकल प्रिविलेजेस को भी पकड़ा जाएगा, उनका भी कर लिया जाएगा. अब तक तो केवल हीनियस क्राइम और कन्विक्ट के लिए किया जाता था, अब किसी का भी ये काम किया जा सकता है. However, the rules notified on September 19 state that samples of those detained under preventive sections such as 107, 108, 109, 110, 144, 145, 151 of the CRPC, जो ये anti-national और ये सब law थे, shall not be taken unless such person is charged or arrested in connection with any other offence punishable under any other law. यानी अगर इसके साथ साथ और धारा इनके ऊपर लगी है तभी इनका कलेक्ट किया जाएगा, अदरवाइज इनका एक्सेप्शन है, इनको नहीं करे. इट कैन आल्सो बी टेकन इफ अ पर्सन हैज बीन ऑर्डर्ड टू गिव सिक्योरिटी फॉर हिज गुड बिहेवियर फॉर मेंटेनिंग पीस अंडर सेक्शन 117 ऑफ द सेट कोड फॉर प्रोसीडिंग अंडर द सेक्शन. तो अगर कोई इस तरह से अच्छा बिहेवियर शो कर रहा है उसका भी लिया जाएगा. तो द रूल्स डू नॉट मेंशन द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड फॉर कन्विक्ट पर्सन. नॉन कन्विक्ट के लिए तो पूरा डिटेल में इसमें लॉ दिया गया है, लेकिन कन्विक्ट पर्सन के लिए एज्यूम कर लिया गया है कि उनके लिए तो बट ऑब्वियस है कि उनका ये रिकॉर्ड लिया ही जाता है. द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विल बी द वन स्टॉप एजेंसी फॉर स्टोरिंग एंड प्रिजर्विंग द डेटा. यानी ये पूरा डेटा किसके हाथ में है? एनसीआरबी के हाथ में है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में काम करती है. द स्टेट गवर्नमेंट can also store the data, but it also shall provide compatible application programming interfaces for sharing for measurement or record measurement with the NCRB. The rules state that NCRB will issue standard operating procedure also कि कैसे वो रखेगा, इसके लिए वो SOP डिजाइन करेगा. The rules state that in case any measurement is collected in the physical form or in non-standard digital format, it shall be converted into standard digital format and thereafter uploaded in the database. Only authorized user could upload the measurement in the central database in the encrypted format. तो ये इन्होंने बताया कि ऐसे हम प्राइवेसी को वो बचा लेंगे. What are the provisions of destruction? अब मान लो कि हम किसी एक बंदे को पकड़ते हैं और वो उसका ट्रायल चल रहा होता है, अरेस्ट रहता है, जितने दिन ट्रायल चल रहा होता है वो अरेस्ट रहता है सपोज, तो उतने दिन तक तो उसका डेटा आपने ले लिया. अब वो डेटा मान लो कि वो वहां पर एक्विट हो गया कि इसने तो ये क्राइम किया ही नहीं था, गलती से अरेस्ट हुआ था या गलत आरोप लगा था उसके ऊपर. ऐसे में क्या होगा? डिस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. The process for destruction and disposal of records are yet to be specified by the NCRB. तो ये NCRB ये सारे SOPs बताएगा. The rules state that any request for destruction of records shall be made to the nodal office who is nominated by the respective state government. State government क्या करेगी? एक nodal officer बना देगी, उसके पास आप करेंगे. अब ये कहीं ना कहीं करप्शन को भी स्कोप दे रहा है. The nodal officer will recommend the destruction after verifying that such records of measurement is not linked with any other criminal cases. करेंगे? क्योंकि हो सकता है उस बंदे के पास के ऊपर कई 2 से 3 क्रिमिनल केसेस हो, तो वैसी स्थिति में वो बच निकल सकता है. इसके लिए उसको जांच करके तभी उसे डिलीट किया जा सकता है. द पॉलिटिक्स ओवर झारखंड, ये वाला न्यूज देखते हैं. झारखंड डोमिसाइल पॉलिसी. अब झारखंड ने डोमिसाइल पॉलिसी लाया कि यहाँ के रेसिडेंट्स कौन माने जाएंगे? वो लोग जो 1932 के कट ऑफ को पार करेंगे. मतलब जो 1932 के पहले जिसके पास कागज है यहाँ का, वो लोग ही यहाँ के आदिवासी मूल निवासी माने जाएंगे, आदिवासियों के लिए. On September 14, the Hemant Soren-led Jharkhand cabinet approved the long-pending demand of Adivasi Moolwasis, original inhabitants,
to make 1932 as the cutoff year of the domicile under the title Jharkhand definition of local persons and extending the consequential social, cultural and other benefits of such local persons bill. इतना बड़ा नाम तो बिल का है, बिल का नाम ही देख लो, यहाँ से शुरू होता है. Jharkhand definition of the local persons extending the consequential social, cultural other benefit of such local persons bill 2020. The draft will be passed in the next assembly session and then sent to center with a proposal to place it in the 9th schedule. अब ये क्या कर रहे हैं कि पास करके इसको सेंटर के पास भेज दो ताकि 9th शेड्यूल में चला जाए. 9th शेड्यूल में जाने से क्या फायदा होगा? इट कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट्स. तो ये वहां पर किया जा रहा है. तो व्हाई हैज 92 बीन डिसाइडेड एज द कट ऑफ ईयर? ये 92 को कर रहे हैं क्योंकि डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स आर डिमांडिंग 92 एज द 932 एज द कट ऑफ ईयर. बहुत लोग इसको पहले से डिमांड कर रहे थे बिकॉज ब्रिटिश ने उस समय लैंड सर्वे किया था एंड रेवेन्यू रजिस्टर उस समय बनाया था और उसी से रिकॉर्ड सबका पता चलता है. As per the proposed domicile policy, people who have their names on their ancestors' name in the land records of 1932 or before will be considered as the local inhabitants of Jharkhand. But those who have lost their land records or have land records which are eligible or landless people can approach their respective Gram Sabha for their inclusion. अब Gram Sabha इस पर खेल करेगी कि वो किसको include करेगी किसको नहीं. Besides, the cabinet note of the state government claimed that 1932 was fixed as a cut-off year for domicile policy as the migration of the people from the other states to Jharkhand had resulted in negatively impacting the original inhabitant मूलवासी aborigine. तो क्या होता है वहां पे माइग्रेशन हो रहा है बाकी से सारे स्टेट से जिसकी वजह से तो this can be verified as the percentage of population of aboriginals since the 1941 census has seen a steady decline in Jharkhand. Said that the note while adding that there needs to be affirmative action at the policy level for development of STs and Mulwasis and identification of local persons was a compelling necessity to provide social, cultural, and educational benefit. However, record shows that land and revision survey, तो ये जो बताया कि 1932 में land survey हुआ था, ये बाद में भी तो हुआ है, कई बार हुआ है. Therefore, marking 1932 as the only cutoff for the domicile policy would leave lakhs of citizens of state as a refugee. The first land survey, especially in the Santhal region, कब हुआ था? 1872 में हुआ था, and उसके बाद 1922 में हुआ था. J.F. Gantzer has complete land survey of the Santhal Pargana done with the amendment in 1932, 34, 36. Got it? तो इस तरह से 1922 के बाद से कई बार सर्वे हुआ था. तो इनफैक्ट बहुत सारे अपोजिशन पार्टीज ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द कोल्हान रीजन ऑफ द स्टेट कंप्राइजिंग ईस्ट सिंहभूम, West Singhbhum and Saraikela district had land review done in 64-65 and the government decision to make 1932 as a cut-off year for domicile will affect 40 to 40 lakh people, है ना. तो अब 2000 में सेपरेट स्टेट बना था, बिहार से अलग बना था, तो इसके लिए अब 1932 को करना बड़ा अजीब होगा. बीजेपी गवर्नमेंट came back to power in 2014 and put forward a domicile policy with 1985 as the cut-off. कुछ लोगों ने इसके पहले 1932 को कट ऑफ बनाया था, बाबूलाल मरांडी सरकार जब थी इनफैक्ट, तो उसका बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ था. फिर 2014 में जब उन्होंने 1985 को कट ऑफ डाला था तब भी बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ था क्योंकि जो लोग बाहर जा रहे हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे ही करेंगे. बात करते हैं श्रिंकफ्लेशन पर. श्रिंकफ्लेशन एक अच्छा टर्म है, ये टर्म इकोनॉमिक्स के से रिलेटेड टर्म है. इसमें क्या है कि जैसे इन्फ्लेशन होता है वैसे श्रिंकफ्लेशन होता है. श्रिंकफ्लेशन क्या एक तकनीक है जिससे जो प्रोडक्ट है ना उसके साइज और क्वालिटी में वेरिएशन करके इन्फ्लेशन को बीट किया जाता है. श्रिंकफ्लेशन इज व्हेन अ प्रोडक्ट डाउनसाइजेस इट्स क्वांटिटी व्हाइल कीपिंग द प्राइसेस द सेम. प्राइस वही रहेगा. इन्फ्लेशन आ रहा है, चिप्स के पैकेट का दाम 20 रुपया था, आज भी 20 रुपया है, इन्फ्लेशन आ रहा है, तो आप कैसे कहोगे कि इन्फ्लेशन आ रहा है? वो क्या करते हैं? वो श्रिंकफ्लेशन का काम करते हैं. क्या करते हैं? श्रिंकफ्लेशन का काम करते हैं. फॉर एग्जांपल, reducing the scoop of ice cream in a container or reducing the number of chips in a packet would count as a shrinkflation. वो क्या करते हैं? दाम बढ़ रहा है, पैकेट का दाम 20 रुपया ही रखना है, तो क्या करते हैं? उसमें से चिप्स के पीसेस कम कर देते हैं या आलू की क्वालिटी कम खराब कर देते हैं या पैकेजिंग में कहीं कटौती कर देते हैं. In other words, shrinkflation occurs when goods shrink in size but consumers pay the same price. It occurs when manufacturers downsize the product to offset the higher production cost but keep retail prices same. अब देखो ना, डेयरी मिल्क पहले आता था, उसमें कितने तरह के रैपर होते थे. गोल्डन रैपर होता था. अब वो गोल्डन रैपर बहुत सारे डेयरी मिल्क प्रोडक्ट से हटा दिया गया, सस्ते वाले प्रोडक्ट से हटा दिया गया क्योंकि प्राइस तो उनको सेम रखना पड़ेगा.
क्योंकि उसी 20 रुपए में वो 20 रुपए वाली डेयरी मिल्क ही बोलता है। तो अब कोकोस का कॉस्ट बढ़ गया, तो अब उसके लिए क्या करेंगे, ये कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए पैकेजिंग में चेंजेस कर रहे हैं या क्वालिटी में चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। तो shrinkflation deceives consumer, deceives, उनको धोखा देता है into believing that the brand they buy are not affected by inflation. Since container and vessel sizes are reduced by very small amount, saving manufacturer more money in the long run. Shrinkflation occurs when material or ingredients used to make product become more expensive and when there is intense competition in the market. Instead of raising prices, they might just give you less of the product so as to maintain their profit margin. अब आप पार्ले जी, मुझे याद है कि बचपन में 4 रुपए में आता था, आज भी 4 रुपए में पार्ले जी आता है, लेकिन बचपन वाला जो पार्ले जी आता था वो काफी बड़े साइज का आता था, अब बहुत छोटा हो गया, उसका 1/3 साइज का हो गया, इनफैक्ट 1/4 साइज का हो गया 4 रुपए वाला। तो साइज वही रखा, दाम वही रखा और साइज छोटा करते हैं। दिस इज नोन एज shrinkflation. Shrinkflation can occur in different ways. It's not just weight, ये केवल वेट या क्वांटिटी में कम नहीं करते हैं, कई बार वो क्वालिटी में भी कंप्रोमाइज कर देते हैं, क्वांटिटी के साथ साथ वो अल्टरनेटिव मेजर जैसे क्वालिटी डिक्लाइन करने लगते हैं। टू प्रिवेंट दिस, अ प्रोडक्ट कैन रीफॉर्मुलेट और रिमूव इंग्रेडिएंट्स व्हाइल मेंटेनिंग इट्स प्राइस। तो क्या करते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट जो महंगे इंग्रेडिएंट में डालते थे वो कम करते हैं, जैसे कैडबरी डेयरी मिल्क वाला मैंने एग्जांपल दिया कि उसने वो जो फॉइल पेपर यूज करता था ताकि चॉकलेट का क्वालिटी खराब ना हो, वो फॉइल पेपर यूज करना बंद कर दिया। Though downsizing product reduces cost of manufacture, it is unfair practice towards consumer. Consumer को तो धोखा देने के बराबर हो गया। Shrinkflation can lead to customers' frustration and deterioration of consumer sentiment towards the producer brand. तो इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म में कंपनी को भी लॉस होगा क्योंकि उनकी इज्जत चली जाएगी, उनका जो रेपुटेशन और क्रेडिट बिल्ड किया है वो चली जाएगी। इंडिया स्पेशली इन्फ्लेशन इज ए कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर की वजह से, डिमांड पुल फैक्टर, कॉस्ट पुश फैक्टर, स्ट्रक्चरल फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर से यहाँ इन्फ्लेशन आ सकता है। Therefore, actually, we need a mix of macroeconomic policy to manage this kind of demand and supply. In India, there is also one right that is known as right to information. You cannot cheat the customer. Jago Grahak Jago is there, has been recognized as the consumer right under the Consumer Protection Act 2019. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन फूड का पैकेट पे देना चाहिए। दिस मींस दैट द कंज्यूमर हैज द राइट टू नो क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड price of the good. Therefore, the Central Consumer Protection Authority needs to bring some guidelines to inform consumers about the shrinkflation activities. अच्छा, ये आर्टिकल था, जैसे आयुर्वेदा को एक पॉलिसी लाई जा रही है कि नेशनल मेडिकल कमीशन हैज proposed to integrate modern medicine with other branches such as Ayurveda and homeopathy. यानी ये इंटीग्रेटेड मैनर में चलेगा, यानी आयुर्वेदा जो डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर एलोपैथिक दवाइयां भी मिक्स करके दे सकता है। इंटीग्रेटेड मेडिसिन रिसर्च इन मेडिकल कॉलेजेस। इन दिस आर्टिकल, अब इसमें एक मेडिकल रिसर्च स्टैब्लिश करने की बात हो रही है मेडिकल कॉलेजेस में, कि हर मेडिकल कॉलेज में आयुर्वेदा और होम्योपैथी का एक रिसर्च सेंटर भी होना चाहिए। इसकी सच में बहुत जरूरत थी। रीजन क्या था, क्योंकि हम आयुर्वेदा में जैसे टेक्निक में हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग बहुत ट्रेडिशनल मेथड्स यूज करते हैं, हम अपने स्क्रिप्चर्स को यूज करते हैं, और उस समय तक स्क्रिप्चर्स में बहुत सारी चीजें जानकारी नहीं थी। वी वर नॉट नोइंग दैट हाउ द यूरिन इज द ब्लड इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू यूरिन, the food or the things we eat are absorbed in the blood and how the blood is converted into urine. We had very simplistic formula that urinary bladder में the blood is being sent, वहाँ पे जो उसका जो बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट इज बीइंग सेंट देयर। तो यहाँ पे किडनी पे रोल नहीं था, तो बिना किडनी को बारे में जाने आप पूरे शरीर को कैसे जान सकते हो। इसी तरह से बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर मतलब वात, पित्त और वायु या जो भी होता है, उन सब के हिसाब से आप आयुर्वेदा में दवाइयां देते हो। तो प्रॉपर कंक्रीट नॉलेज नहीं है बॉडी सिस्टम का, बॉडी ऑटोनॉमी का, और उसके ऊपर मेडिसिन है। तो इसमें करने की क्या जरूरत है, कहीं कहीं आयुर्वेदा बहुत सटीक मेडिसिन क्रिएट किया हुआ है। तो इनको एक अच्छे रिसर्च के द्वारा हमें क्या करना चाहिए कि जो लूपहोल्स है, जो गैप्स है, जो इररिलेवेंट चीजें हैं वो हटा देनी चाहिए और रिलेवेंट चीजें रखनी चाहिए उसमें, और उसको प्रॉपर इंटीग्रेट करना चाहिए। वहां पर ऐसे रिसर्च सेंटर्स काम आएंगे। The adaptation of traditional knowledge system for current use comes with its challenge, which if dealt with lackadaisically can endanger the welfare of its user. Valuable observations related to health promotion and illness management needs to be carefully shifted from outdated theories, implausible conjectures, तो वहाँ conjectures और socio-religious superstitions पर दिया जाता है,
लेकिन उनको उनको थोड़ा सा डिफाई करना होगा, हटाना होगा और नए चीजें लानी होंगी। जैसे अगर आयुर्वेदा की क्लासिकल नोट की बात करें हम, अ सेंस ऑफ ईज, इम्प्रूव फिटनेस, इजी डाइजेशन, आइडियल बॉडी वेट, हैंडसमनेस ऑफ द बॉडी फीचर आर द बेनिफिट्स दैट वुड एक्रू फ्रॉम रेगुलर एक्सरसाइज। आयुर्वेदा कहता है कि योग करो, रेगुलर एक्सरसाइज करो। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, इसको डिफाई नहीं किया जा सकता, डिनाई नहीं किया जा सकता। ये आज भी 1500 साल से वैलिड है और आज भी वैलिड है। बट ये तो फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंजेक्चर्स बहुत तरीके से इसमें वो कर सकते हैं, कंजेक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो इन सबको अवॉइड करने के लिए कंक्रीट फॉर्मुलेशन आयुर्वेदा का भी होना चाहिए, ताकि अच्छे से इसका यूज हो सके। अदरवाइज इसका सिर्फ मिसयूज हो सकता है। ठीक है, जो हम लोग का त्रिदोषा थ्योरी है, त्रिदोषा थ्योरी, ये तीनों दोष के बारे में बात करते हैं, वात पित्त और कफ, वात पित्त और कफ। तो इन त्रिदोषों के आधार पर बहुत सारा दवाई दिया जाता है। काफी हद तक ये सटीक भी होता है, लेकिन इसके पीछे का रिसर्च करना चाहिए, हमें R&D में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके ऊपर बहुत सारी कमिटीज की रिपोर्ट भी आई, बहुत सारी कमिटीज पे बैठी थी। ठीक है, इनफैक्ट आयुर्वेदा में एक सबसे बड़ी चीज मान ली जाती है, क्योंकि इसको सेजेस ने, ऋषियों ने बहुत ध्यान करके लिखा है, डिवाइन थ्योरी इसमें ऐड कर देते हैं, तो उससे काम नहीं चलेगा, इसमें प्रॉपर रिसर्च चाहिए होगा। दिस नोशन ऑफ एपिस्टेमिक superiority has its roots in the hugely influential memorandum of the Science and Art of Indian Medicine authored by G. Srinivas Murthy. The memorandum formed part of two reports. इन्होंने एक उस्मान कमेटी रिपोर्ट बैठी थी 1923 में और एक चोपड़ा कमेटी बैठी थी 1948 में। The flawed idea antithetical to the yukti vyapashraya reason based character of classical Ayurveda has kept the field from demystifying its theories and achieving the reforms long overdue. So in fact जी श्रीनिवास मूर्ति की ये बुक ने, जो साइंस एंड आर्ट ऑफ इंडियन मेडिसिन, उस्मान कमेटी की रिपोर्ट और चोपड़ा कमेटी की रिपोर्ट को कंसीडर करके उन्होंने लिखा था, और उसमें बहुत सारी चीज डिमिस्टिफाई किया था उन्होंने, जो एकदम फ्लॉ थे, एंटीथेटिकल थे, उन सब चीजों को हटा के उन्होंने उस किताब को लिखा था। तो ऐसा ही रिसर्च की जरूरत है अभी हाल फिलहाल में। इनफैक्ट देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय एंड प्रियव्रत शर्मा हैव आल्सो ड्रॉन अटेंशन टू द मिथ ऑफ एपिस्टेमिक सुपीरियरिटी। एपिस्टेमिक मतलब ये कि डिवाइन ओरिजिन है, सेजेस ने कहीं से रिसर्च किया है, जड़ी बूटियों को खोजा है, दैट हैज रेंडर्ड आयुर्वेदिक टेक्स्ट नॉन रिवाइजेबल। तो इसको अब हमें रिवाइज करने की कोशिश करनी चाहिए, ये जो डिवाइन थ्योरी से आगे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। दिस आर्टिकल आल्सो पॉइंट्स आउट द फ्लॉड approach of making ancient concepts sound relevant by superimposing current scientific finding upon them. Fields such as Ayurveda carry the risk of leading to dangerously wrong clinical choices. The Ministry of Ayush must wake up and take cognizance of the point made here. Academic drawing handsome salaries from government-run Ayush institutes need to see how sinful it is to hand over an unprocessed proto-science to gullible youngsters and then mislead them into believing that it is super sophisticated advanced science. As a medical science system, Ayurveda is valuable immensely for its ऑब्जर्वेशन, ओनली मार्जिनली फॉर इट्स थ्योरीज। तो ऑब्जर्वेशन तो सही है, लेकिन थ्योरीज में फेल करता है आयुर्वेदा। अच्छा, बिहार फ्री ऑफ नक्सल प्रेजेंस। अभी आपने देखा ना कि हम लोग इंसर्जेंसी डाउन है, टेररिज्म डाउन है, ये हमने 2 दिन से पढ़ा। अब ये नया ये नैरेटिव जो आ रहा है, ये एक बहुत दिन के एफर्ट गवर्नमेंट के थे, उन गवर्नमेंट के एफर्ट अब धीरे धीरे करके फ्रूटफुल हो रहे हैं। जो वॉर छेड़ा गया था इंसर्जेंसी के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर और नक्सल रीजन के ऊपर, वो धीरे धीरे करके अब फ्रूटफुल हो रहा है। कुलदीप सिंह जो सीआरपीएफ के डीजी हैं, he said that the Bihar was free of left wing extremism now. छुटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट बिहार से नक्सलिज्म खत्म है। झारखंड में कुछ एरिया में है, हमने इनफैक्ट 90% रिडक्शन देखा है झारखंड में भी। 2015 में हमारे पास 35 सबसे सीवियरली इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट थे, आज के डेट में 2021 तक इसको 25 हमने कर दिया था, जो कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रीजन में पाए जाते थे। Mr. Singh said that considerable success was achieved in 2022 in Bihar, Jharkhand and Chhattisgarh as the CRPF launched Operation Octopus, Operation Double Bull, Operation Thunderstorm and Operation Chakrabandha। तो ये इनके 4-5 ऐसे ऑपरेशन है, चक्रबंधा, थंडर स्टॉर्म, ऑपरेशन डबल बुल, ऑपरेशन ऑक्टोपस, ये इनके मेजर ऑपरेशन थे 3 स्टेट्स में, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में,
जो कि सबसे ज्यादा मेजरली इफेक्टेड एरिया है। द ऑपरेशन लेड टू द अरेस्ट ऑफ एंड सरेंडर ऑफ 592 माओइस्ट। इसी तरह से आपने सुना था ना ग्रे हाउंड ऑपरेशन आंध्र प्रदेश के लिए था। तो ये ऑपरेशंस का नाम आप याद रखिएगा, कई बार पीटी में इसको पूछ सकता है, ठीक है। He said that the चक्रबंधा इन बिहार, जो कि 8 to 7 किलोमीटर का रीजन था, उसको पूरी तरह से क्लीन कर दिया गया है। बुड्ढा पहाड़ का रीजन भी क्लीन कर दिया गया है। बुड्ढा पहाड़ में तो पहली बार हेलीकॉप्टर लैंड किया सितंबर में, तो इस तरह की सिचुएशन वहां क्रिएट हो गई है। तो ऑफिसर सेड दैट सिंस 2019 a unique policy has been adopted, समाधान पॉलिसी जो अडॉप्ट किया गया था Maoist in the past 4 years. The Union Home Ministry had paid 4,000 crore to the CRPF to purchase the latest weapons and equipment. ये सारी टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्रॉपर स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग के साथ ये हो पा रहा है। Got it? Union Home Ministry, Amit Shah tweeted, for first time permanent camps of security forces have been established in these regions successfully in Buddha Pahad, Chakrabanda और भीमा बांध रीजन में। He said that Jharkhand security forces recovered a US made rifle। अभी हाल फिलहाल में इनके पास ज्यादातर देशी कट्टे और हथियार होते थे, लेकिन अभी बीच में US मेड राइफल भी इनको मिले, कहीं से इनकी सप्लाई हो रही है। इनफैक्ट हमने कई बार देखा ना कि हम इंटरनल सिक्योरिटी जब पढ़ते हैं कि नक्सल्स का कनेक्शन धीरे धीरे करके इंसर्जेंट से हो रहा है, जो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स है, और वो म्यांमार से कनेक्टेड है, और म्यांमार से कनेक्टेड होने की वजह से उनको ये सारी चीजें सप्लाई मिलती रहती है। अच्छा, रतन टाटा, केटी थॉमस आर द ट्रस्टीज ऑफ पीएम केयर्स। पीएम केयर्स के ट्रस्टी बना दिए गए हैं रतन टाटा को, केटी थॉमस को, और लोकसभा डिप्टी स्पीकर करजा मुंडा, ठीक है, एज द ट्रस्टीज ऑफ पीएम केयर्स फंड। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, द ट्रस्ट further decides to nominate other eminent person for the constitution of advisory bodies। में एक advisory body भी बनाई जा रही है। They include Rajiv Mishri from Comptroller and Auditor General, former Comptroller and Auditor General Rajiv Mishri, Sudha Murthy, Infosys chairman, former chairperson रह चुकी है Infosys Foundation की, और आनंद शाह, co-founder of TICS for India। TICS for India एक NGO है, उसके फाउंडर है आनंद शाह, उनको भी इसमें रखा गया है। And the CEO of the IndyCorp and Piramal Foundation, इन सब को इसका वो दिया गया है, राइट। Will EWS quota cut share of pie of those competing on merit as CJI? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इनफैक्ट तो यहाँ पे ये will EWS quota cut share of pie of those competing on merit as CJI। अब ये मामला जो चल रहा है, तीन बहुत इंपॉर्टेंट मामले चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। एक तो ये EWS कोटा वाला मामला चल रहा है, इसके ऊपर सुनवाई चल रही है। एक हिजाब केस वाला चल रहा है, जहाँ पर वो समरी ट्रायल चल रहा है, सबरीमला और एसेंशियल प्रैक्टिसेस ऑफ रिलीजन को लेकर के चल रहा है, ठीक है। इन सब पर जितने इस तरह के केसेस हैं उस पर नजर रखिएगा, उसको इनफैक्ट ध्यान में रखिएगा। तो क्या चल रहा है हम उस पर डिस्कस करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में पूछ लिया कि एक बात बताओ कि क्या गवर्नमेंट ने डिमिनिश कर दिया है अपॉर्चुनिटीज ऑफ कैंडिडेट हु कम्पीट फॉर जॉब्स एंड सीट्स इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन प्योरली ऑन द मेरिट बाय कार्विंग आउट 10% कोटा फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। और इस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में से उन्होंने बहुत आराम से उन लोगों को निकाल दिया जो ओबीसी एससी एसटी कम्युनिटी के लोग थे, वो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन थे, लेकिन उनको इसमें से हटाया गया क्योंकि कहा जा रहा है कि उनको ऑलरेडी 50% कोटा में तो उनका नाम है, तो उनको इसमें देने की जरूरत नहीं। इसमें सिर्फ जनरल कास्ट के लिए ईडब्ल्यूएस दिया गया है। तो ईडब्ल्यूएस कोटा वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इट एक्सक्लूड्स द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फ्रॉम अदर सेक्शन। इसका मतलब जनरल कैटेगरी को 10% दिया गया। बट द कोर्ट पॉइंटेड आउट दैट द क्रीमी लेयर मेंबर्स ऑफ द ओबीसी would be competing in the general category, taking 10% from the open category would affect them too। उनको भी इफेक्ट करेगा क्योंकि वो लोग तो यहाँ क्रीमी लेयर वाले यहाँ कम्पीट कर रहे हैं जनरल में, और वहां पे क्या हो रहा है कि अब दो लोग कम्पीट कर रहे हैं, क्रीमी लेयर ऑफ ओबीसी और जनरल, ये लोग कम्पीट कर रहे हैं। इनको 10% मिल रहा है तो इनको नहीं मिल रहा है, इनको 10% तो आप दे नहीं रहे हो। तो ये सब क्वेश्चंस रेज कर रहा है सुप्रीम कोर्ट इन प्रोसिक्यूशन से। The 50% available in the general category is open to all. Anybody be they were from SC, ST or OBC or non-reserved can compete purely on the basis of merit. By taking 10% of this 50% and reducing it to 40%, are you not diminishing the character of the meritorious candidates to compete in the arena?
Are you not reducing the share of the pie for those persons who could have competed on the basis of their own individual merit and got the seat? The Chief Justice asked this. तो कहीं ना कहीं ये बड़े क्रिटिकल क्वेश्चंस सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है. अब देखते हैं प्रोसिक्यूशन पे क्या जवाब देता है और कैसे इसको कन्विंस करता है. The court questioned the necessity of the state's affirmative action to carve out the EWS quota. उन्होंने पूछा इसकी नेसेसिटी क्या थी, इसकी जरूरत क्या थी. The bench noted that those in general category who were below the poverty line came to only 1/6 of the total general population. इतने कम population के लिए 1/6 population के लिए आप 10% कैसे दे सकते हो, ये वो पूछा जा रहा है. How will the student prepare for diversity when none is allowed in the classroom? ये अब हिजब वाले केस में आ जाते हैं. हिजब वाले केस में क्या हो रहा है, हिजब रो में उसमें अब जो प्रोसिक्यूशन है वो पूछ रहा है कि अगर हिजब को हम इस तरह से देखें कि स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि भाई डाइवर्सिटी वर्ल्ड में क्या होती है, दुनिया में क्या होती है, कंट्री में क्या है, कितने तरह की डाइवर्सिटीज हैं, हिजब तो उसका रिप्रेजेंटेटिव है. ये वो लॉजिक दे रहे हैं. How will the student prepare for the great diversity in the country when none allowed in their classrooms? Supreme Court Judge Sudhanshu Dhulia asked on Wednesday. Justice Dhulia asked whether he meant hijab has created a wall of separation. He also said hijab should be seen as an eye opener, a window to prepare students for diversity of the nation. उसी तरह से ये तीसरा केस है. तीसरा केस कौन सा? हेट स्पीच वाला केस चल रहा है. Condemn hate speech aired on TV. The Supreme Court on Wednesday said that the role of TV anchors is critical in monitoring that their show do not descend into flurry of hate speech. वो तो create करवाते हैं hate speech और उनको Supreme Court कह रहा है कि आपको रोकना पड़ेगा. ये the court said content on the mainstream electronic media and social media remain largely unregulated. इसको regulate करने की जरूरत है. Supreme Court has been consistent in its effort to stop hate speech on TV. In January 2021, the then Chief Justice Bobde had said that arresting hate on TV was an essential for law and order, as arming police with the lathis and putting a barricade to prevent the spread of violence and riots. तो आप जिस तरह से बैरिकेड लगाते हो, लाठी चार्ज करवाते हो, उसी तरह से आप हेट स्पीच को भी रोकने का भी तैयारी कर लो. अच्छा, पुलिस मेडल्स दिए जाते थे इंडियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा. वो पुलिस मेडल्स 2018 में इंस्टीट्यूट किया गया था पुलिस मेडल, उनमें से 3 को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है. कौन कौन सा? द अवार्ड ऑफ पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म रीजन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कैटेगरी, द उत्कृष्ट सेवा पदक एंड द अति उत्कृष्ट सेवा पदक. आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक जो कि मेनली इंसर्जेंसी और सबके लिए दिया जाता था, द उत्कृष्ट सेवा पदक एंड अति उत्कृष्ट सेवा पदक, ये 3 कैटेगरी हटा दी गई है उसमें से. अच्छा, 19,500 का एक पीएलआई प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम दिया जा रहा है. किसके लिए? सोलर सेल के लिए, सनशाइन इंडस्ट्री तरीके से है. The cabinet on Wednesday cleared a 19,500 crore production linked incentive scheme to incentivize manufacture of domestic solar cell modules to reduce the industry's reliance on Chinese made panels. तो उनको इंपोर्ट करना पड़ता है चाइनीज से उस पर, क्योंकि आने वाले दिनों में हमें सोलर सेल्स बहुत सारे चाहिए होंगे. This follows the 4,500 crore tranche cleared in November 2020. तो इसमें ऑलरेडी पहले से कुछ पीएलआई दिया गया था, उसको भी इंक्लूड करके टोटल 19,500 करोड़ का है. That will span the entire production cycle of modules from making the polysilicon cells, ingots, wafers and panels to assembling modules that are used. तो मतलब end to end सभी जगह पर ये इंसेंटिव स्प्रेड किया गया है. PLI will be disbursed to firms after. PLI का मतलब होता है कि अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो आपको ज्यादा इंसेंटिव दिया जाएगा. तो इनिशियली आपने प्लान बताया कि मैं 1000 यूनिट करूंगा, मान लो 1000 यूनिट की कैटेगरी में वहां पर है कि इसको इतना इंसेंटिव दिया जाना चाहिए, तो वो इंसेंटिव आपको मिल जाएगा. जिससे क्या होगा, आपका प्रोडक्शन कॉस्ट गिर जाएगा और आप मोटिवेट होगे. इससे क्या होगा, बहुत सारी कंपनी, बाहर की कंपनी है, वो इंडिया में इन्वेस्ट करके यहाँ पर इस तरह के प्लांट लगाने की कोशिश करेंगे अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है तो. PLI will be disbursed to firms after they set up their manufacturing units and the money disbursed over 5 years. Got it? 5 साल में ये डिस्बर्स किया जाएगा टोटल. The bulk of the allocation of the nearly 12,000 crore is to incentivize the setting up of integrated manufacturing facility. यानी मेजॉरिटी पोर्शन किसके लिए है? नई इंडस्ट्री जो सेटअप करेगा यहाँ पर, तो ये एनकरेज कर रहे हैं बाहर की कंपनीज को यहाँ ला करके सेटअप करने का. ठीक है. Logistic policy aims at reducing cost by 2030. The cabinet on Wednesday approved the national logistic policy. अभी देखो हमने कहा ना कि नेशनल फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हम लाने वाले हैं. अभी हमने लाया नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, which aims to reduce cost of logistics and bring efficiency. हमें लॉजिस्टिक का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिक्रीज करना है
और उसको एफिशिएंसी लानी है, स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेस, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड स्किल डेवलपमेंट, ये सब करके हमें वो अपने लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमें अपनी रैंकिंग 2030 तक बहुत अच्छी इंप्रूव कर लेनी है। ये हमारा टारगेट है। अच्छा, इंटरनेशनल मीट टू पुश फॉर फ्रेमवर्क ऑन फार्मर्स राइट, एक इंटरनेशनल मीट जिसको कि इंडिया ने और स्विट्जरलैंड ने मिलकर के एनहांस किया है, इनफैक्ट इनिशिएट किया है, यस स्विट्जरलैंड और इंडिया ने मिलकर के इनिशिएट किया है। The governing body meeting of International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, ITPGRFA इसका नाम है, International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. The Union Agriculture Ministry said India stood for the creation of an operation for implementation of farmers' right and proposed the use of global information system for plant generic resources for food and agriculture needs. मतलब यहाँ पर एक information exchange का system होना चाहिए ताकि farmer के rights को intact किया जाए. The center said an expert group on farmer right was constituted in 2017 with efforts taken by India and the country led to group as a co-chair. India also pushed for revival of enhancement of multilateral system as from 2019. All formal meetings for IGF were suspended क्योंकि ये फिर से रिवाइव करने के लिए इंडिया ने बहुत इनिशिएटिव दिया. India also called for capacity building to use the global information system on plant generic resources for food and agriculture. India, as a member of scientific advisory committee, proposed that use of GLIS global information system needs capacity building among contracting parties. It also mentioned that information रहेगा तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, हमें किस तरह की बीमारी हो सकती है आने वाली है या किस तरह के चेंजेस आने वाले हैं, क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, सीड्स में किस तरह के चेंजेस लाए जाएं, टेक्नोलॉजीज में कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो ये शेयर करना पड़ेगा एक दूसरे को. It also mentioned that the country wants continued effort towards conservation and sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture. India, as a member of committee on conservation and sustainable use, proposed joint program with international and regional organizations institute to fulfill this agenda. Raju Srivastava is there. Sad demise of great commitment, great fact hero. लाफ करवाना इतना आसान काम नहीं है, हंसी करवाना इतना आसान काम नहीं है, और ये उसमें माहिर थे. Put patriotism first, China tells in Muslim citizens. Muslim citizens को अपने कह रहा है कि आप पेट्रियोटिज्म को सबसे आगे रखिए, क्योंकि इस्लाम में कहा गया इस्लाम से बड़ा कोई नहीं होता है और वो किसी और की नहीं मानेंगे, इस्लाम की सिर्फ मानेंगे. लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, आपको मानना पड़ेगा, आपको हर हाल में चाइना के पेट्रियोटिज्म में. तो ये इनफोर्स इंट्रस्टेड पेट्रियोटिज्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनको बार बार ये बात कहा भी जा रहा है. ये तो डायरेक्टली कहा जा रहा था कि आप कंडीशनिंग कर रहे हो, आप इम्पोज कर रहे हो, आप राइट्स का वायलेशन कर रहे हो. ये साफ साफ दिख रहा है कि ये किस तरह से इंटरेस्ट और इम्पोज कर रहे हैं. These comments came a week August 31 report released by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights said that China has committed serious human rights violation against its Uyghur Muslim minority in the Western Xinjiang province. The report said that extent of arbitrary and discriminatory detention of members, जबरदस्ती उनको डिटेन किया जा रहा है, उनको इनफैक्ट री-एजुकेशन सेंटर्स में उनको भेज दिया जा रहा है, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग्स, चाइना जिसको कि वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कह रहा है, तो वहां पर क्या हो रहा है कि वहां चाइनीज सिखाया जा रहा है, उनको चाइनीज तौर तरीके सिखाया जा रहा है, वहां एंटी इस्लामिक तरीकों में उनको तब्दील किया जा रहा है. चाइना slammed the reports as the patchwork of information that serves as the political tool for US and some Western forces. बोले चाइना को गिराने के ये सब साजिश और कुछ नहीं. GCC कंट्रीज ने थोड़ा सपोर्ट किया इनको. GCC कंट्रीज गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कमिटीज फॉर देयर अपहोल्डिंग जस्टिस ऑन इश्यूज रिलेटेड टू ताइवान, जिंगजियांग, हांगकांग and human rights, as well as their understanding of and support of China's legitimate demands. तो वो कहीं ना कहीं जिससे सपोर्ट मिला तो उसकी तारीफ भी कर रहे हैं. ADB prepares India's financial year 23 GDP growth forecast. ADB ने इंडिया के ग्रोथ फोरकास्ट को, GDP ग्रोथ फोरकास्ट को कम किया. पहले बोला था कि 7.5% से ग्रो करेगा, अभी 7% ग्रो. मेन रीजन इसमें क्या बताया इन्होंने रीजन बताया कि इन्फ्लेशन, ये जो सस्टेन इन्फ्लेशन चला जा रहा है, और जो सब्सिडी वगैरह दे रखा है इन्होंने फर्टिलाइजर में, गैस में, फूड डिस्ट्रीब्यूशन फ्री प्रोग्राम जो कर रहे हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये सब, इन सब की वजह से इनको जो लॉसेस हो रहे हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इनका जीडीपी जो है ना, वो थोड़ा सा स्लम्प पे रहेगा. इनफैक्ट इन्होंने कल्प्रिट किसको बताया है? 2 चीजों को, इन्फ्लेशन को और सोशल वेलफेयर मेजर्स जो गवर्नमेंट ले रही है इसको. दूसरी तरफ चाइना की इकोनॉमी को लेकर के भी इन्होंने रेज किया कि चाइना की इकोनॉमी 3.3% से ग्रो करेगी 2022 में. ये अभी तक का उसका लोएस्ट है, पिछले 3 डिकेड में इतना कम ग्रोथ रेट कभी नहीं रहा है चाइना का. The lower growth outlook of India along with the sharp contraction in Sri Lanka would translate into slower growth of South Asia. यहाँ पे इंडिया, चाइना
और श्रीलंका, तीनों का देखना है तो ओवरऑल एशिया का ग्रोथ तो स्लो हो रहा है, और खास करके साउथ एशिया का, साउथ एशिया में जैसे इंडिया और श्रीलंका की बात करें तो ग्रोथ काफी स्लम्प रहेगा अगर इंडिया का भी ग्रोथ थोड़ा सा स्लो हो रहा है। अच्छा, कैबिनेट अप्रूव्स यूनिफॉर्म 50% सपोर्ट फॉर चिप डिस्प्ले यूनिट। उन्होंने कहा कि अगर चिप और डिस्प्ले यूनिट अगर काम कोई लगा रहा है चिप बनाने का या डिस्प्ले बनाने का, एलईडी बनाने का, तो उसको क्या होगा, 50% यूनिफॉर्म डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी खर्चा होगा। यूनियन कैबिनेट ऑन वेडनेसडे अप्रूव यूनिफॉर्म फिजिकल सपोर्ट ऑफ 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट जितना रहेगा उसका 50% हम लोग रिबेट करेंगे फॉर ऑल टेक्नोलॉजी फॉर्मेट्स फॉर चिप फैब्रिकेशन यूनिट्स अंडर द स्कीम। क्योंकि ये बढ़ाया गया क्यों, क्योंकि इसमें बहुत हाई टेक्नोलॉजी, हाई एंड टेक्नोलॉजी लगती है, और हाई एंड टेक्नोलॉजी और हाई एंड रिसोर्सेस वही कंपनी यूज कर सकती है जो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी होगी। तो ऐसे कंपनी को अट्रैक्ट करने के लिए ये बताया गया है। इधर देखो, विप्रो फायर्स 300 मूनलाइटिंग विद फर्म कंपटीटर्स। विप्रो ने 300 लोगों को निकाल दिया, इसलिए निकाल दिया कि वो दिन में तो विप्रो में काम करते थे और रात में वो किसी और कंपनी में काम करते थे, और जिस कंपनी में काम करते थे वो विप्रो का कंपटीटर था, इस वजह से उन्होंने इनको हटा दिया। तो आज के लिए इतना ही। द हिंदू में थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।